So, hello guys, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing your work because plenty of students are calling me and already messaging me, sir, how can we solve our question answer and all. So I have already given them suggestion that guys, I am already discussing your topics. Okay, still if you are having any problem regarding that topics, you can concern me. But you have to do your question answer by yourself. Huh? Make a notes through yourself in your own words. Everything is I am already making you understand, and we are already going to finish this lesson. This is the last topic. Okay? So in case of last topic, generally after this topic, the lesson will be finished, and you will do your question answer at your home. When I will say, I will submit it in the school. I will check it, and I will return your copy back. Understand? Okay, fine. So visualizing the nation. इसका मतलब क्या हुआ guys? Some peoples, like in case of monarchy or the democratic peoples, try to represent their country through the different kind of symbols. You know, जैसे मेरे देश में भी है, झंडा है, झंडे में 3 कलर है, ठीक है, green, saffron and white. So like the same, the color of prosperity of Europe also has been decided. Blue, red and white colors. The colors of prosperity has been decided by the understand? Then again, new things has been made like uh, broken chain. Broken chain is already a kind of a system that is through which the people are already get rid of the king slavery system, and they wanted to be a freedom, get their freedom. So these are the things, and like big people is also there. Big women, we have learned in class 9. There's the woman who wanted to fly over in the sky, and massage and all, plenty of things. There's already rising sun. These are the symbol. It's a very simple term. You can understand. Monarchy is the term that are ruled by the kings. Okay, and then democratic. The first one people is selected, and that selected people is elected by the people again, then become a leaders for the country who can run their countries. So these are the terms. Generally, plenty of terms is over there. So no need to already clarify such a terms. If you are having some problem, then you can concern. Okay. So visualizing the nation, and in the 19th century, guys, okay, at the end of the not end, in the 19th century, actually, in case of starting, okay, there is a one term scheme that is called imperialism. Okay, imperialism. Imperialism. Okay, what do you mean by the imperialism? अब आपको देखकर सोचना इंपीरियल, what do you mean by the imperial? तो देखो, अब तक लोगों की नज़र तो उनके राज्य पर ही थी ना, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, उसको बना रहे थे, उसको बेहतर बना रहे थे, लोगों के बारे में सोच रहे थे. लेकिन अभी एक नया ख्याल आ गया था लोगों के अंदर, वो जानते हो क्या? लालच. ठीक है, ग्रीडी नेचर. कैसे भाई? आप धीरे धीरे किसी जगह पे क्या करोगे? Once you get a place, you will try to sit. Okay. Then after some times, you try to already, okay, open with your hands and legs. आप वहाँ फैल के बैठना चाहोगे. Then after a few times or few days, you want to be a sleepover. आप वहाँ सोना चाहोगे. ठीक, तो सोचो, पहले बैठने की जगह मिली, फिर फैलाने की हर जगह, और अब इंसान क्या करना चाहता है? सोना. ये जनरल रिचुअल है. Each and every people are doing so like that because everybody want to get a promotions from everywhere. चाहे जो भी हो, तो ऐसा लोग चाहते ही चाहते हैं. आज आपका स्टेटस कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और, तो चाहत बढ़ती जाती है. ठीक है, लोगों की. सो एनीवे गाइस, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म मतलब कुछ और पाने की इच्छा. अब तक तो राज्य वाले राज्य को लिए अच्छा कर रहे थे, देश के लिए अच्छा, लेकिन अब उनकी नज़र में यह आ गया, जो आस पास पड़ोस के देश हैं, छोटे मोटे गरीब या
सही नहीं ढंग से चल पा रहे एरिया जो है उनको कैप्चर करना, ठीक है, उनको क्या करना, कैप्चर करना और धीरे धीरे उन पर अपना अधिकार जमाना, दैट इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। समझ में आ गई बात? तो दैट इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। इसके थ्रू से क्या हो रहा था, लोग शासन कर रहे थे और दूसरे जगहों पे दूसरे देशों पे लोग अटैक करना चाह रहे थे, छोटे मोटे देश, ठीक है, जिसकी वजह से इम्पेरियलिज्म का वो छोटे छोटे देश शिकार हुए। आज इम्पेरियलिज्म का बहुत उदाहरण है, चाइना को देखिए, भूटान पे, ठीक है, हांगकॉन्ग पे और छोटी छोटी कंट्रीज पे, थोड़ा बहुत बर्मा पे भी उसका कैप्चर है, पाकिस्तान पे कैप्चर है उसका, लेकिन पूरे हिस्से से नहीं, लेकिन भूटान, ठीक है, बर्मा मीन्स म्यांमार, ठीक है, ये सब देश तो उसके कैप्चर में ही है, ठीक है। तो इस तरह से वो इम्पेरियलिज्म किया, बहुत देशों ने बहुत देशों को कर लिया, ठीक है। तो पहले ऐसे ही इम्पेरियलिज्म बहुत सारे देश किए थे। तो आज फिर से जब नेशनलिज्म हो गया तो लोगों की नज़र फिर से इसी चीज़ पे आ गई। पहले ऐसा ब्रिटेन करता था, स्कॉटलैंड को मिला लिया, आयरलैंड को मिला लिया, ठीक है, तो अब ऐसा ये कर रहा है, ठीक। और नेशनलिज्म के थ्रू से आप जानते हो रसिया के बेटा बाद में बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुए इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी का, ठीक है, कजाकिस्तान बना, तुर्कमेनिस्तान बना, ठीक है, उज्बेकिस्तान बना, रसिया से ही कट कट के बनी थी सारी। तो वो सब तो नेशनलाइजिंग का, नेशनलिज्म का पार्ट था। अब यहाँ पे लोग कैप्चर करना चाहते हैं, तो रशिया ने भी यूक्रेन, एक छोटी सी कंट्री है, उसके ऊपर कैप्चर किया, अभी 5-6 साल हो गया, तो यूक्रेन को उसने कैप्चर कर लिया, इम्पेरियलिज्म किया। तो इस तरह से ये हुआ, तो दूसरे देश को जीतना था और वहाँ क्या नया सत्ता बनाना था, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, ये सब चीज़ें चलती रही लोगों के अंदर और अन्य देश दूसरे देशों को हथियाना शुरू किया। और जब हथियाना शुरू किए तो भाई सबको अच्छा नहीं लग रहा, वो पड़ोसी है कोई उसको 2 थप्पड़ मार के चला गया, ठीक है, या उससे ज़बरदस्ती काम करा रहा है, तो अपने को तो अच्छा नहीं लगेगा, इसे। तो क्या हुआ, तो कुछ कंट्रीज में एक साथ हो गए, ठीक है। अब कुछ कंट्री इसमें एक साथ हो गए, तो इस कंट्री में जो इन सभी में जो रशिया था, हंगरी, रशिया, हंगरी, अंडरस्टैंड, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये सब एक साथ युद्ध में कूद गए, ठीक है, कि ऐसा ना कोई किसी पे कैप्चर ना करे जबरदस्ती, जो जैसा जी खा रहा है उसको जीने का। तो जब ये सब एक साथ कूद पड़े इम्पीरियलिज्म के खिलाफ, तो उस समय क्या हुआ, तो 19th सेंचुरी चल रही थी और जब एक साथ हम लोग आपस में कूद पड़े, तो जिससे 1914 में, ठीक है, क्या स्टार्ट हो गया गाइस, फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, ये शुरू हो गया। नतीजा आप लोग जानते हैं, सारे कंट्री 2 दल में बढ़ गए पूरे देश के, और कोई उसको लड़ रहा, उसको मार रहा, उसको उससे लड़ाई कर रहा। और इसी वर्ल्ड वार में ही जापान, नागासाकी, हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम गिराया था जापान में, ठीक है, बाद में जापान ने समझौता कर लिया था। तो इस तरह से चलता रहा और ये समझौता हो गया और वर्ल्ड वार मिटा था, सारे लोग आज काफ़ी फ्री हैं। So that's all about the lesson, guys. Lesson 1 we have done and completed. So I'll be meet you as soon as possible from your next video with the new topics and new lessons. Thank you. Have a nice day. Do your work at your home and I will get you instruct, okay, when you have to submit your comments in the school campus. Thank you. Have a nice day.